and here we go. Chalo. Okay. So, good evening, everyone. How are you? I'm waiting for your Saturday updates. Once we finish off with the class, please go back and update the tracker. Okay, somebody has also joined. I will begin once again once Afreen has joined. Afreen is somebody new who has joined the community. So, yes, Afreen, hello, Afreen. Good evening. How are you? If you can switch on the video, it would be great. Yeah, I'm looking very weird in video call. Oh, don't worry about that. We are all looking very weird. Okay. Yeah. Hi. I'm here at the Charimli at Nandan Kanan. Oh, wow. Yeah. Okay, so let's do this once again. Picture first, and then I will start what we are going to talk about. Sangeeta, please, can you please switch on once more? Vikrant, mute kar lena, please. Everyone, please mute. Sangeeta, pause. Afreen, if you can just turn back so that light is on your face instead of at your back. Yes, perfect. Yes, yes, yes. Give me a moment. Everyone, pause, smile. Yes, we are done. Yes, we are done. So, okay. So, good evening, everyone, once again. I'm waiting for your Saturday weekly trackers. Please, when you go back from this session, update your trackers and share it with me either today itself or tomorrow before 9, because otherwise our class is scheduled for 9 on Sundays. This is just the exception because I'm at Pachmani taking a session, 2-day session on work-life balance for police professionals. So tomorrow I'll be traveling. So today we'll be doing this. Today is a very empowering session we will be doing. This test is known as a passion test. So I just want you to understand one thing today, that passion जो आज तक हम सोचते आए हैं passion के बारे में, today we will have a different perspective towards the passion. जब भी हम पैशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब भी हम अपनी प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करते हैं चीजों को, तो होता क्या है, अ लॉट ऑफ टाइम्स ब्रेन एंड हार्ट, नॉट ब्रेन रादर माइंड एंड हार्ट, दे आर नॉट सिंक्ड इनफ. सो हम वो प्रायोरिटाइज करने में भी बड़ी परेशानी होती है. दिमाग कहता है ये करो, ये इंपॉर्टेंट है. दिल कहता है ये करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो दिल और दिमाग के बीच की जो जंग है, दिमाग कहता है नौकरी ज्यादा जरूरी है, पैसे तो कमाना ज्यादा जरूरी है. दिल कहता है कि नहीं, मजे करना ज्यादा जरूरी है, आज एक और गुलाब जामुन, एक और समोसा खा लो, वो ज्यादा मजे की बात है. सो यस, दिस इज व्हाट हैपेंस एंड देन द प्रॉब्लम अराइजेस. यस. सो आज हम सेशन शुरू करने से पहले, सबसे पहले बस 2 मिनट के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, सो दैट आवर ब्रेन, आवर माइंड इज सेटल्ड डाउन. क्योंकि आज हम वैसे भी शाम को 7 बजे क्लास कर रहे हैं. सबके दिमाग अभी भी पूरे दिन का प्रेशर और बर्डन आया हुआ है, उसके साथ में हम यहाँ बैठे हैं. सो जस्ट टेक 2 मिनट्स टू क्लोज योर आईज. आज हम करेंगे बॉक्स ब्रीदिंग. बॉक्स कैसा होता है? स्क्वायर बॉक्स. बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे. ब्रीद इन करेंगे, जो भी आपको काउंट करना है, 4, 5, 6, 7, 8. ब्रीद इन, होल्ड योर ब्रेथ फॉर अनदर सिमिलर काउंट. लाइक अगर आपने ब्रीद इन किया है फॉर 4 काउंट्स, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 4 काउंट्स, देन रिलीज इट, एक्सेल 4 काउंट्स, एंड देन अगेन होल्ड. मीन्स खाली पेट करने के बाद में फिर 4 काउंट्स आपको होल्ड करना है, एंड देन अगेन ब्रीद इन. राइट? सो लेट्स स्टार्ट. 2 मिनट्स. Sorry.
Try to focus on the life you want to live. Try to focus those small little details of life. What are you doing? What are you doing in that life? What are the people you're around? What are you being, I would say? Physical possession. Focus on everything. Your dream life. Don't worry about how this happened. It is about just focus right now. We are only focusing on what we are doing, not on what's coming. Sorry. Slowly, just rub both your hands, press them against your eyes, come back to the room, and write down in the chat box, how are you feeling right now? Write down in the chat box, how are you feeling right now? What is the feeling? Clear, peace, relaxed and enthusiastic, good, bright, amazing. What else? What else? Good and relaxed, fresh. Find God within. Amazing. Happy and relaxed. Good. So, okay. So, with this mindset, we've already set our minds clear. Now, let's check the physical things as well, whether we are aligned physically as well. जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ, कोई डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई आसपास घूम रहा है, म्यूजिक चला रहा है. आई कैन सी आफरीन इज वॉकिंग समवेयर, बट डोंट वरी आफरीन, just be with me so that you can understand what we are doing in this community and what we are trying to make, how we are trying to make these changes in lives, right? Just be there with us. So others who are in their houses, please check, please make sure that you are not disturbed by anybody during the session we are doing. And as I had told you, asked you to get a pen and paper, not a paper, rather a notebook. Just show me your notebooks and pen, proper notebook where you will taking the notes, where you will making the list. Good. Amazing, amazing, amazing. सो लेट्स, अभी हम जब शुरुआत करेंगे, शुरुआत करने के पहले सबसे पहले जो हम बात करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट पैशन इज. अभी तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पैशन. अच्छा, समबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैशन? आप क्या समझते हो पैशन से? व्हाट इज पैशन फॉर यू? व्हाट इज पैशन फॉर यू? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. What is passion? My identity and drive. Okay. What else? Being innovative in science field. Okay. What else? What else?
Anybody? Vikrant, Sangeeta, waiting. Vikrant, something that doesn't drain energy but give pleasure in doing. Yes. Passion is something which gives pleasure. Good. Everybody is done. Pragati. Yeah. Passion is doing something that you extremely love and with blissful energy. ठीक है. So this passion test is basically a self reflection, है ना? Going deep within you. और आपको जो सबसे अच्छा लगता है लाइफ में वो ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस पैशन टेस्ट. और इसी के लिए हमने अभी किया है छोटा सा मेडिटेशन टू कूल टू सेटल डाउन आवर माइंड, राइट? जस्ट सेट कंफर्टेबली. कोई बहुत ज्यादा इरेक्ट बैठने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्लाउच होके मत बैठना, आराम से बैठो. ऑलरेडी हम फोकस कर चुके हैं व्हाट वी नीड टू डू बी एंड हैव. नाउ वी हैव दिस image in our mind, right? So welcome back to this passion test. And अभी हमें करना क्या है? अभी थोड़ी सी एक बैकग्राउंड बता देती हूँ. ये पैशन टेस्ट आपको तब तक हेल्प नहीं करेगा जब तक आप इस पैशन टेस्ट को करने के बाद में यू आर रेडी टू टेक स्टेप्स. दिस पैशन टेस्ट विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू अगर आपको लगता है जो भी कुछ होता है लाइफ में वो भगवान ने लिखा हुआ है, बस वो ही होगा और कुछ नहीं हो सकता. यस. अगर आपको ये लगता है कि एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड एंड यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर योर डेस्टिनी, दिस पैशन टेस्ट मे और मे नॉट हेल्प यू. अब ये पैशन टेस्ट हमने किया कि क्या आपके लिए जरूरी है, क्या आपका पैशन है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या, हाउ इज द रोड मैप, आपके पास सब कुछ साफ ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया. उसके बावजूद भी अगर आप एफर्ट्स नहीं करना चाहते, उसके बावजूद भी अगर आप उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो जहां पे आप ऑलरेडी हो, अगेन दिस पैशन टेस्ट विल नॉट हेल्प यू. सो टेल मी इन द चैट बॉक्स, आर यू रेडी टू गिव योर 100%? This test will require your 100%. And other than that, this test being clear, this test working for you requires your 100%. I want all of you to take 100% responsibility. जो हमने बात पहले भी की है कई सेशंस में. Your life is only and only your responsibility. Everybody write down 100 in the chat box if you are ready to give your 100% to your life, to yourself, to your passion. Good, good. From now onwards, nobody will unmute their mics. This is a humble request to you because इस test के बीच में I will not take any questions. At the end of the test, I will ask you to share if you have any questions. I will make sure that I answer all your questions, right? Just give me a thumbs up in the chat box if you are with me on this. Good. It is 7 o'clock, rather 7:20, Saturday evening, weekend. Still you are there with me. Just pat your back. एक बार अपने हाथ से बढ़िया मेरे सामने पीठ ठोक के बताओ, पैट योर बैक. बजाय कोई पार्टी करने के, बजाय कुछ और करने के, आप यहाँ पे मेरे साथ में बैठे हुए हो. दिस शोज हाउ डेडिकेटेड यू आर टुवर्ड्स योर लाइफ, टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, टुवर्ड्स योर ओन हैप्पीनेस. So amazing, congratulations and hats off to you. तो पैशन के बारे में बात करते हैं. सो a lot of us are confused around the passion. तो आज मैं यहाँ हेल्प करना चाहती हूँ आपकी टू थिंक हाउ टू थिंक अबाउट पैशन. पैशन इन रिगार्ड्स टू पैशन, व्हाट शुड बी योर थॉट प्रोसेस. अक्सर हम लोग कैसे बोलते हैं, आई एम कंफ्यूज्ड अराउंड माई पैशन, मुझे पता नहीं मेरा पैशन क्या है, बहुत क्लैरिटी नहीं है. द मोर यू से आई एम कंफ्यूज्ड, what are you actually doing is you are sending a message to your subconscious mind that now you have enough reasons to not act. Now you have enough reasons to not act. अब दिमाग हमसे क्या बोलता है, अरे बहुत कंफ्यूजन है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से बैठो. ठीक है, बिकॉज दिमाग का काम क्या है? दिमाग के काम है टू कीप यू अवे फ्रॉम द पेन और टू पुश यू टुवर्ड्स द प्लेजर.
सो इट विल कीप यू अवे फ्रॉम द पेन। कंफ्यूजन है, कोई जरूरत नहीं है सुबह उठने की, पता नहीं वजन कम होगा इससे या नहीं होगा, राइट? कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट नो व्हाट माय पैशन इज, आई डोंट नो हाउ टू फिगर इट आउट, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं, आज मैं चाहती हूँ आज आप अपने आप से प्रॉमिस करो दैट यू विल नॉट यूज दिस वोकैबुलरी नाउ। रादर यू विल से टू योरसेल्फ कि आज तक नहीं थी क्लैरिटी, बट नाउ आई एम फिगरिंग आउट, maybe I'm experimenting on this, I'm exploring new ideas and new themes around passion so that I get enough clarity around my passion, right? So give me a in the chat box, what are you doing right now with your passion? Exploring, experimenting, figuring out, or whatever, what द वर्ड विच रेजोनेट्स विद यू मोस्ट, जो आपकी नेचुरल वोकेबलरी में होता है, वो क्या वर्ड है, वो वर्ड लिखो एंड देन कीप यूजिंग दैट वर्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अराउंड योर पैशन परस्यूइंग। यस, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट नो वन बट यू कैन discover your passion. It is entirely an internal work. Only you have the rights, only you have the power, only you can do it for yourself. और जब आप ये बार बार कंफ्यूजन की बात करते रहते हो तो वो नहीं हो पाता। आज के बाद नहीं बोलना एक्सपेरिमेंटिंग एंड रादर आई लव दिस थिंग, इस तरीके की बातें बोलनी। सो पैशन क्या है? पैशन इज समथिंग लाइक एन अनियन। सबने देखा है प्याज, कोर कहाँ है? कोर अंदर है। उस कोर तक पहुंचने के लिए यू नीड टू पील इट, एक एक परत, एक एक लेयर उसकी हमें पील करना पड़ती है, तब हमें अंदर जो उसका बल्ब होता है वो नजर आता है। बिल्कुल वैसी ही पैशन है। तो आपको भी अपने पैशन के साथ बिल्कुल यही करना है। तो सो आज के बाद बस वो प्याज छीलने का काम हम शुरू कर रहे हैं, राइट? और अगर आपने ये सोचा कि नहीं मेरा पैशन तो यही है, लाइक सम ऑफ यू हैव रिटन कि क्या पैशन है, डू नॉट गेट योर सेल्फ फिक्सेटेड टू वन थिंग। नो, दैट इज नॉट द पैशन, वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। अब पैशन के बारे में अगर थोड़ा समझ में आ गया हो तो अब मैं एक और मजेदार बात आपको बताना चाहती हूँ, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट योर पैशन, एंड दैट इज दैट जब भी अब a lot of you should I don't know how many of you actually are very very confused और आपको यही नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करना। कोई होगा यहाँ जो डांसर अच्छा है, कोई सिंगर अच्छा है, कोई बॉडी बिल्डर अच्छा है, बट देर शुड बी समबडी जो बहुत सारी चीजों में अच्छा है, लेकिन वो कौन सी एक सबसे अच्छी चीज है जिसमें बेस्ट हूं, जो मेरा पैशन है, ये उसको नहीं पता। So what I want you to do is, anybody who has more than one options in your life, what I want you to do is start working on one of them, any one of them. और जैसे जैसे आप उसके साथ काम करोगे, what are you doing is आप वो पील कर रहे हो अनियन। जैसे जैसे आप उसके साथ काम करोगे आपको क्लैरिटी आने लगेगी वेदर यू आर गुड एट इट और नॉट। गिव योर सेल्फ अ मंथ टू एक्सपेरिमेंट विद वन पैशन। और अगर आपको किसी भी दिन ये लगता है कि इसमें मजा नहीं आ रहा, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द सेकेंड वन, राइट? लेकिन एक आध महीना तो फोकस तरीके से, एक आध महीना तो डेडिकेशन के साथ में उसको दे के देखना ही बनता है, राइट? कोई भी दो रास्ते हैं, बोथ द रूट्स आर राइट टू रीच अ डेस्टिनेशन। अब पता कैसे चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है? स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट वॉकिंग एंड समबडी ऑन द वे विल टेल यू कि ये सही रास्ता नहीं है, ये वहां पहुंचने का नहीं है रास्ता, ये कहीं और तो पहुंच जाओगे, राइट? वन, अबाउट योर वोकेबलरी, एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सप्लोरिंग, परस्यूइंग, वॉट एवर, जो भी आपकी, स्टार्ट वर्किंग, एक्शन, क्लैरिटी, यस, अ लॉट ऑफ थिंग्स, वॉट एवर योर इज योर डिफॉल्ट वोकेबलरी, वो वोकेबलरी आपको साथ में यूज करना शुरू। नंबर टू, start experimenting from today onwards if you have more than one passion। और अगर आपका सिर्फ एक भी पैशन है एंड यू डोंट नो उसमें सक्सेसफुल होना कैसे, मेक अ लिस्ट ऑफ इट कि क्या क्या काम किए जा सकते हैं एंड स्टार्ट फ्रॉम वन एंड, एनी वन एंड, राइट? अब ऐसा कहते हैं कि ये जो चीजें हैं ये कई बार बोलने में आसान है लेकिन करने में मुश्किल है। कोई बात नहीं, करके देखो।
आई एम ट्राइंग, you also can try everything that comes your way. For example, आपका पैशन है मे बी केक बनाना, क्योंकि केक बनाना यहाँ पे किसी का भी पैशन नहीं, इसीलिए मैं केक बनाना पैशन ले रही हूँ। आपको लगता है मेरा पैशन है केक बनाना, आप जाओ अपने किसी घर में होम बेकिंग शुरू करो, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को सैम्पलर्स भेजना शुरू करो एंड आस्क फॉर द फीडबैक फ्रॉम देम एंड यू विल गेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग वेदर दिस इज योर थिंग और नॉट, राइट? नंबर नंबर वन वॉज, क्या था नंबर वन? वोकैबलरी बदलना। नंबर टू इज कीप एक्सप्लोरिंग, कीप पीलिंग योर अनियन। अब हम बात करते हैं नंबर थ्री के बारे में। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या ही करना है। नाउ दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। इफ यू डू नॉट नो what is your passion, this is your homework. Send a message to your known people. आपकी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास में मैसेज भेजो। उस मैसेज में ये लिखो, what do you appreciate about me? What do you appreciate about me? एंड देन बहुत सारे जवाब आएंगे। कोई जवाब होंगे जो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, कोई जवाब होंगे जो आपको थोड़ा सा सूट करते हैं। सी मैक्सिमम जवाब क्या आया है। अब मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि फिर 50 में से 25 का जवाब वो आया हो। मैक्सिमम का मतलब ये है कि अगर एक ही जवाब, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, 10 से ज्यादा लोगों ने भेजा है, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग देयर। हम सबको ईश्वर ने हजारों चीजों के साथ में नवाज के भेजा है, और बस वो हजारों चीजों में से एक या दो ही हमें ढूंढना है टू क्रिएट आवर ड्रीम लाइफ, टू बी दी बेस्ट। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, हमने सबने बचपन में सुना होगा, मैंने भी अपने माता पिता से बचपन में सुना है कि कुछ भी करो लाइफ में बस वो बेस्ट करो। लेकिन परेशानी हमारी ये कि हम वो कर रहे हैं जो बहुत सारे दूसरे लोग बेस्ट कर रहे हैं। हम अपना जो अंदर छुपा हुआ बल्ब है, अपने अंदर जो छुपी हुई लाइट है, वो देखने की कोशिश नहीं कर पा रहे। इसीलिए सारी परेशानी होती है, इसीलिए हमें ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, राइट? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? नो? ठीक है, चलो। सो आपने ऑलरेडी एक छोटा सा मेडिटेशन हमने किया है उस, एंड यू ऑलरेडी हैव वर्कशीट्स विद यू। सबके पास वर्कशीट्स है? जस्ट शो मी दी वर्कशीट्स। प्रिंट आउट निकालें। ठीक है, साथ में डिवाइस है, प्रिंट आउट निकालें। बहुत बढ़िया, प्रिंट आउट आपने निकालें। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आई वांट यू टू लिस्ट डाउन थिंग्स जो आपने अभी मेडिटेशन किया था उसमें डू, बी और हैव में जो चीजें आई हैं उनकी लिस्ट बनाना है। ठीक है? अब कुछ एक इंस्ट्रक्शंस हैं, जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दोज इंस्ट्रक्शंस। पहले इंस्ट्रक्शंस सुनो एंड देन स्टार्ट मेकिंग दैट लिस्ट। लिस्ट बनाने से पहले मुझे एक प्रॉमिस करो, लिस्ट बनाने से पहले मुझे एक प्रॉमिस करो एंड राइट डाउन इन द चैट बॉक्स दैट आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस, क्या प्रॉमिस करना है? आज के बाद जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि ये मुझे काम थोड़ा सा इंटरेस्ट दे रहा है, आई विल गिव इट अ ट्राई। आई विल गिव इट अ ट्राई। आपको पता है, देर इज अ आइडिया एंजल इन दी वर्ल्ड। दुनिया में एक एंजल है जिसका नाम है आइडिया एंजल। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको कुछ आइडिया आया हो, आपके दिमाग में आइडिया आया है, एंड विद इन सम डेज यू सी अ लाइव एग्जाम्पल समबडी एल्स परस्यूइंग दैट आइडिया? आपके साथ हुआ है ऐसा? कैसे, किस किस के साथ हुआ है ऐसा? मुझे जरा चैट बॉक्स में यस लिख के बताओ। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि आपको दिमाग में कोई आइडिया आया और फिर आपको ये लगा कि अरे ये तो मेरा आइडिया इसने कॉपी कर लिया, राइट? बहुत सारे लोग हैं जिनको लगा है, आफरीन को लगा है, रिचा को लगा है। What is this phenomena? I'm coming to that, Afrin. Yes, yes. So there is something called आइडिया एंजल। अब वो आइडिया एंजल उन सब लोगों के पास जाता है जिसके पास कैपेसिटी होती है, जिसके पास एबिलिटी होती है टू परस्यू दैट थिंग, वो चेंज वर्ल्ड में लाने की, जिसके भी पास वो एबिलिटी है, जिसके पास भी वो शक्ति है, उसके सबके पास वो जाता है आइडिया एंजल। उसके कंधे पे बैठता है और उसके कान में बोलता है आइडिया। तो जैसे आपके कान में बोल रहा है वो आइडिया, बिल्कुल वैसे ही जिनके और लोगों के पास में सेम एबिलिटी है उनके पास भी जाके वो आइडिया कान में बोल रहा है। एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम और हर इज दैट वर वेटिंग you were waiting for
समडे वो बेस्ट मोमेंट, वो परफेक्ट मोमेंट, वो परफेक्ट वोकैबलरी, वो परफेक्ट शब्द, वो परफेक्ट कपड़े, वो परफेक्ट वेट, आई डोंट नो व्हाट, एंड दैट अदर पर्सन हैज टुक दैट फर्स्ट स्टेप। सिर्फ यही अंतर है आप में और किसी भी और ऐसे व्यक्ति में जिसने आपका आइडिया आपको लगता है चुरा लिया है। एक्चुअली उसने नहीं चुराया। वो आइडिया एंजल ने जैसे आपको दिया था वैसे बिल्कुल उसको भी दिया है। सिर्फ एक ही अंतर है that you kept waiting for that perfect moment, and that other person took this first step, and he or she has started exploring, started experimenting, started doing everything that नेटवर्क इशू हुआ ना मोनिका मैम? आई कॉल अप स्वाति। वैसे तो पता हाँ, चल वो शायद पचमढ़ी में आता है नेटवर्क इशू। शी इज लुकिंग नाइस दो। फ्रोजन भी अच्छी लग रही है। फ्रीज हो गया। उसमें हाँ आया हैंग ऑन टेक्निकल इशू। हाँ नहीं या ठीक है ओके या शी जस्ट कमिंग बैक। लॉग आउट हुआ है कुछ लैपटॉप से। शी विल कम बैक। हाउ वाज योर डे संगीता? बढ़िया। सैटरडे कैसा रहता है? ज्यादा हेक्टिक या थोड़ा लुकिंग सारे फॉरवर्ड? दिन एक समान। सारे दिन एक समान। कोई ना कोई कुछ ना कुछ आता है हर दिन। प्रगति हाय। हेलो मैम। वी आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। मैं कल एक गजल नाइट में जाने वाली हूँ। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। आई थिंक शी इज योर। आफरीन आप बाहर ही बैठोगे या घर भी जाओगे? Actually, I wanted to enjoy the weather. That is why I am sitting here. मतलब गर्म ही नहीं है भोपाल में संगीता? नहीं, Yeah, it's बहुत too अच्छा much hot वेदर है। here. No, आप but भोपाल में नहीं today, हो क्या? yeah, I'm in Bhopal, नहीं नहीं, Charimli. आई एम आस्किंग टू मोनिका। Oh, okay, okay, okay. It's 42 degrees in Gwalior. आप ग्वालियर में है क्या? I'm in Gwalior. ग्वालियर तो ग्वालियर ही है। वहां आप शाम को बाहर नहीं रह सकते। आप कभी नहीं रह सकते सुबह 6 से 7:30 के बाद। मैं बॉर्न एंड बॉट अप ग्वालियर ही हूँ। गुड इनफ। भोपाल में अभी बहुत अच्छा मौसम हुआ है 2-4 दिन से। Yeah, weather is good now. I also lived in Gwalior, city center. दैट्स अ कूल प्लेस। Yeah, but the city was not cool for me. Not at all. Sorry. I am not biased towards cities. I think that it's the people who make this. I'm just keeping them occupied, ma'am. Thank you. चलिए मैम, आप आ गए, हम लोग बातें करने लग गए थे। मैं वापस आ गई हूँ, बातें मत करो। वी विल टॉक। जी जी। है ना, बातें मत करो। चलो, कहाँ थे लास्ट? मेरा किस सेंटेंस में मैं फ्रीज होके चली गई थी बाहर? किस बारे में बात कर रहे थे जब जब मैं फ्रीज हो गई? क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद पता चलता है यहाँ पे। That you promise to pursue that passion, and it is okay to switch over to another one. ओके, That सो particular आइडिया एंजल के angel बारे में हम whisper. बात कर रहे थे। वो आइडिया बात, एंजल की बात कर रहे थे। हाँ, Angel. आइडिया एंजल की बात कर रहे थे, राइट? सो आइडिया एंजल के बारे में यही है। सो आइडिया एंजल गिव्स यू एंड अदर्स द आइडिया। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन who is successful in that idea and a person who is not successful, or maybe you and somebody else, is the only thing that other person has taken that first step and you still waited for that perfect moment, that right moment, कि अभी थोड़ा वजन और कम हो जाएगा तब, अभी मे बी
आई डोंट नो, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोगों के इमेजिनेशंस होते हैं अबाउट बीइंग द परफेक्ट। कह रहे ये सही एज नहीं है, अभी 2 साल बाद करेंगे, ये नॉलेज और ये इंफॉर्मेशन और आ जाए, ये इस तरह का, मैं टेक्निकली ये और काम कर लूं उसके बाद में मैं शुरू करूंगी। आई डोंट नो व्हाट इट इज फॉर यू, व्हाट इज कीपिंग यू away from taking that first step. But I just want to tell you one thing. Whenever there is an idea and you are not taking the step, it is not. फिर से फ्रीज हो गए। यहाँ पे am I with you? मैम नाउ बीच बीच में फ्रीज हो रहा है। Keep it here, please. Signal is weak, मुझे लगता है। You were frozen for 10 seconds. हाँ ठीक है कोई बात नहीं। आई एम गेटिंग दिस थिंग नियर hotspot. So, okay. The only thing is, you are not less in anything. The only thing is that your mind is playing games with you. वो जो हमारा समझदार माइंड होता है, जो रैशनल माइंड होता है ना, वो सिर्फ रीजंस ढूंढ रहा है why you should not act. Why? Because उसका क्या काम है? उसका काम है टू कीप यू सेफ, टू कीप यू अवे फ्रॉम द पेन। अगर फेल हो जाओगे तो तुम्हें दर्द होगा, तो करो ही मत, फेल ही नहीं होगी। Right? So what it is doing is, it is just keeping you away from the pain. And what you should do, what is your thing is that you should take that first step. Let's start. अभी जैसे ये टेक्निकल ग्लिचेस इतने सारे आ रहे हैं, हो सकता है मैं ये बोल सकती थी कि आज इस हफ्ते क्लास नहीं लेते, अगले हफ्ते लेंगे। बट आई थॉट नहीं, लेट्स गिव इट ए ट्राई। कभी मैं कल को बाहर जाऊंगी एंड आई एम इन सच अ वंडरफुल ब्यूटीफुल प्रोफेशन कि मैं कहीं भी रह के ये सेशंस ले सकती हूँ। व्हाई नॉट एक्सप्लोर दिस? व्हाई टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम दिस, ये सोचते हुए कि अरे ठीक से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहीं बीच, कोई बात नहीं, कहीं बीच में कुछ हो भी गया तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे ये सेशन। बट एटलीस्ट I try to take that first step. किस चीज के लिए रोक रहे हो अपने आप को? इफ यू कैन आइडेंटिफाई दैट वन थिंग जिसके लिए अपने आप को रोक रहे हो, वो सुंदर दिखना, वो और टेक, फॉर एग्जाम्पल याद करो, मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोग मेरी एज के लगभग के हैं। याद करो करिश्मा कपूर प्रेम कैदी में कैसी दिखती थी। याद करो कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस उसकी पहली मूवी में, और याद करो आफ्टर अ जर्नी दे हैव टेकन। अगर वो उस दिन यही सोच रहे होते कि अभी मुझे थोड़ा सा और सुंदर दिखना है, थोड़े से और स्किल सीखना है, क्या वो वहां पहुंच पाते जहां पहुंची? एनीबडी? रिचा इज देयर, रिचा इज अ डांसर। रिचा टेल मी, क्या सरोज खान ने जो पहला कोरियोग्राफी की थी दैट वाज एज गुड एज उसके जब करियर के पीक पे वो थी? नो। nobody is born perfect and nobody can start perfect. और अगर किसी को ये लग रहा है, कोई ये वेट कर रहा है that I will launch myself when I'm perfect, I'm very sorry to say that everyone वो छोटे मोटे जो लोग हैं ना, वो आपको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे। and you there is a saying, if you feel that you are perfect when you started very late. If you are not embarrassed when you started very late. So yes, just remember this and take that first step. Whenever you come across to the right passion, to that something जो आपको इंटरेस्ट करती है, जो आपको ओके। सो 3-4 चीजें हो गई। सबसे पहले आइडिया एंजल की बात, सबसे पहले हमारी बात हो गई है किस बारे में? अबाउट दी वोकैबुलरी। सेकंड में पीलिंग दी अनियन के बारे में, एंड थर्ड थिंग इज अबाउट द आइडिया इंजन। नाउ आई वांट यू टू ओपन अप योर वर्कशीट्स। उन वर्कशीट्स में यू नीड टू राइट एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस। कुछ एक इंस्ट्रक्शंस हैं, जस्ट लिसन टू दोज इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। नंबर 1, you need to complete a sentence. When my life is ideal, then there is a blank. When my life is ideal, I am. इतना सेंटेंस आपको मिला है, इसके आगे का सेंटेंस आपको इसमें लिखना है।
ठीक है, when I am, जब आप लिखेंगे make sure you are doing it in the present continuous tense, मतलब ing words के साथ में लिखा जाएगा. I am doing these sessions. I am coaching my clients. I am being a good mother for my children. I am cooking happily for my children. I am traveling with my family. ing words, पहली चीज. Number two, do not go in your past, meaning my life is ideal. Anybody in your life, मुझे नहीं पता who are you missing in your life, अगर वो जिंदा होते, maybe when my father would have been alive, when my grandfather would have been alive, my life would be ideal. Don't go in your past because you cannot change your past. You cannot change your past. Number three, don't go a lot in future. Don't go a lot in future. एक साल का पर्सपेक्टिव रखो. पता चला संगीता या कोई और बोले कि माई लाइफ इज आइडल व्हेन माई डॉटर इज गेटिंग मैरिड. ओ बहुत देर है अभी, कम ऑन, कम बैक. पर्सपेक्टिव रखो ज्यादा से ज्यादा 3 साल का, नॉट मोर देन दैट. उससे जितना कम रखोगे इट विल गिव यू क्लियरर पिक्चर. जितना कम रखोगे, 1 साल रखोगे, इट विल गिव यू मोर क्लियरर पिक्चर व्हाट यू कैन डू राइट नाउ. Number four, do not judge yourself. Do not judge yourself. Whatever is feeling right for you is right for you. So do not judge yourself. ठीक है, ये 4 ही इंस्ट्रक्शंस हैं. राइट डाउन माई लाइफ इज आइडियल व्हेन आई एम देयर. तो मेरी लिस्ट में है माय लाइफ इज आइडियल व्हेन आई एम कोचिंग माय क्लाइंट्स. माय लाइफ इज आइडियल व्हेन आई एम टेकिंग ऑनलाइन सेशंस एंड वेबिनार्स. माय लाइफ इज आइडियल व्हेन आई एम कुकिंग विद फॉर माय चिल्ड्रन. माय लाइफ इज आइडियल व्हेन आई एम traveling with my friends. My life is ideal when I'm sipping my tea at my professionally managed farmhouse. My life is ideal when I'm wearing a nolakahar. So what are you being, doing, having? फिजिकल पोजेशंस पे भी ध्यान दो. क्या फिजिकल पोजेशंस दिख रहे हैं आपको, उन पे भी ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो. इस पे भी ध्यान दो. What are you doing? Being, मतलब what are you being when I'm being a good coach? One of the things in my list is my life is ideal when my book is having a bestseller status, selling fast. Yes. So write down at least 10. If you can write down more, it is okay. I'll give you 5 minutes maybe for this. ठीक है, 5 मिनट में हो जाएगा. So I am switching off my camera for 5 minutes, playing a beautiful music for you. Just write down, and when you are done, just come back to the chat box and write down done so that I have an idea.
ओके, आर वी डन? आर वी डन? विक्रांत, हुआ लिस्ट बनी? ओके, सो ये जो लिस्ट हमने बनाई है, दिस लिस्ट इज एन एवर इवॉल्विंग लिस्ट. इसीलिए मैंने कहा डोंट जज योरसेल्फ, राइट? कोई भी जवाब, नो आंसर इज राइट एंड नो आंसर इज रॉन्ग. इट इज एन एवर इवॉल्विंग लिस्ट. जैसे आज अगर मुझे लगे कि माई करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, और दिमाग में You या मेरे का क्या, परिवार का क्या, ये बोलती हूँ that my family is the most important thing, my career is the most important thing, am I saying that my family is not important? No, right? So this list is ever evolving. 3 महीने बाद जब मैं अपने करियर के उस मकाम पे पहुंच जाऊंगी जहां मैं पहुंचना चाहती हूँ 3 महीने में, ये लिस्ट इवॉल्व हो जाएगी. नाउ माई लिस्ट कैन somebody else your voice on the your top, voice is right? cracking. So हमने अपनी लिस्ट, जस्ट राइट डाउन योर, ओके, नहीं, अभी ठीक आ रही है आवाज? थोड़ा सा सिग्नल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, लैग हो रहा है. वीडियो बंद करके थोड़ा लैग के ट्राई कर. साथ में. ओके, आई विल ट्राई, यस. सो बीच बीच में बाकी के यू सारे कैन. भी वीडियो बंद है, मेरा भी वीडियो बंद रहेगा. यस, नाउ इज इट ओके? नाउ इज इट बेटर? या या या. ओके, चलो. सो कहाँ थे? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये जो लिस्ट है ये एवर इवॉल्विंग लिस्ट है. ये लिस्ट आज बन गई और कहीं पत्थर पे नहीं लिख दी हमने. इट इज नॉट रिटन ऑन द रॉक, ऑन द स्टोन. इट इज रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. That is why I told you not to judge yourself, right? If I feel today, if you feel today that your career, your something, your relationship, your health is the most important thing right now, do not judge yourself on this thing. कि अरे फैमिली पहले क्यों नहीं है, स्पाउस पहले क्यों नहीं है, ये पहले क्यों नहीं है. कोई बात नहीं, ये एवर इवॉल्विंग लिस्ट है. जैसे ही आप अपनी हेल्थ में, आप अपने करियर में, आप अपने रिलेशनशिप में उस जगह पर पहुंच जाओगे in a 3 months time, this list can change. And I would suggest, highly recommend, do this passion test every 3 months. बाय मंथ, 2 महीने में एक बार करना हाईली रेकमेंडेड है. लेकिन अगर 2 महीने में नहीं भी कर पा रहे हो, तो 3 महीने में एक बार आप जरूर करो इसको, सो दैट यू कैन गेट बैक ऑन ट्रैक. आपने सोचा था करियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही करियर आगे चलने लग गया, जैसे ही करियर में एक लेवल पे आप पहुंच गए, नाउ यू नीड टू रीवर्क द लिस्ट. नाउ focus on something else that is important in your life. और ये passion on a book which is known as the passion test, more than passion, it is about finding what is your priority right now. आपकी आज के तारीख में अभी क्या प्रायोरिटी है, ये फाइंड आउट करना, ये पैशन टेस्ट का, इस लिस्ट का काम है. सो नाउ वी हैव लिस्टेड आर टॉप 10. अब जो सेकेंड स्टेप है, आई एम श्योर सबने जो लिस्ट बनाई है वो आईएनजी फॉर्मेट में ही बनाई है. आई विल बी डूइंग, बाइंग, वॉट एवर जो भी लिखा है. सो इन आर वन ऑन वन, मैं चाहती हूँ एवरी वन शुड कम विद योर passion list, and we will discuss on that list and find out what is the right way going forward. ठीक है, चलो. अब second step, now your sheet number 1 is done. Now I want you to go to your worksheet number 2. सब लोग हैं कि कैमरा बंद करके सारे लोग गायब हो गए कैमरे की दूसरी तरफ से? है, एवरीबॉडी इज हियर. Yes, yes. एवरीबडी इज हियर, गुड.
तो जो कैमरा ऑन रख सकते हैं वो ऑन रखें, क्योंकि मेरे वीडियो से लैग हो रहा है आवाज में, आपके वीडियो से लैग नहीं होगा, सो दैट एटलीस्ट आई नो समबडी इज देयर, आई एम नॉट टॉकिंग टू द आइकन्स, आई एम टॉकिंग टू द ह्यूमंस. So the second step of the test is go to your worksheet number 2. अब हमें prioritize करना है. And when you are prioritizing, I don't want you to just write down list पे से देख के लिखो कि अरे बच्चे सबसे पहले, फैमिली सबसे पहले, करियर सबसे पहले. नो 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 नो, ऐसे नहीं करना है. प्रायोरिटाइजेशन कैसे करना है? बहुत ध्यान से सुनो. संगीता, विक्रांत, आई वॉन्ट यू टू स्विच ऑन योर कैमराज बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी केयरफुली. करना क्या है? आपको अपनी लिस्ट में नंबर 1 और नंबर 2 सबसे पहले कंपेयर करने हैं. कंपेयर योर नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड आस्क योर सेल्फ, इन दोनों में से अगर एक ही पॉसिबल है, इफ ओनली वन ऑफ देम इज पॉसिबल, विच वन वुड आई चूज? Ask yourself, if only one of them is possible, which one would I choose? इसमें से जो भी आपने सिलेक्ट किया है, if it is number 2 for example, now compare number 2 with number 3 and ask the same question. If only one of them is possible, which one would you choose? अज्यूमिंग कि दोबारा से नंबर 2 आया है, जो आपने सिलेक्ट किया है, चूज किया है. नाउ compare the chosen one with the fourth one. Which one would you choose? Just for the sake of assumption, now you have chosen number 4. Now compare number 4 with number 5. मतलब ये कि हर बार जो आपने चूज किया है उसको कंपेयर करना है नेक्स्ट नंबर से, नेक्स्ट सीरियल नंबर में जो है उससे. सबको कंपेयर करो 10 तक, अगर 10 लिखे हैं तो. और जो आखिरी में बचता है, विच वन वुड यू चूज, दैट इज योर नंबर 1. दैट इज योर नंबर 1. अब उसको पुरानी लिस्ट में से काट दो, नई जो आपकी शीट है वर्कशीट नंबर 2 उसमें लिख दो. आपकी जो नई शीट है उसमें लिख दो उसको. एंड नाउ रिपीट दिस प्रोसेस विद द रिमेनिंग आइटम्स. 10 में से एक चला गया है, बाकी के 9 के साथ में सेम प्रोसेस रिपीट करो. स्टार्ट फ्रॉम द नंबर 1, विच एवर इज नंबर 1 फॉर यू राइट नाउ. नंबर 1 2 3 आपने पुरानी लिस्ट में जो सिलेक्टेड वाला है वो काट दिया है. अब आपके पास सिर्फ 9 बचे. नाउ कंपेयर दोस. ठीक है? अगेन आई एम गिविंग यू मे बी 2 मिनट्स फॉर दिस. सो कम अप विथ टॉप 5. 10 की लिस्ट में से टॉप 5 चूज करेंगे. लेट्स फोकस ऑन टॉप 5 फॉर द नेक्स्ट 3 months एंड देन वी विल गो टू अनदर 5. ठीक है? चलो, टेक 2 minutes एंड प्रायोरिटाइज इट. Again, when you are doing this, do not judge yourself. क्योंकि लिस्ट इवॉल्व होने वाली है. अभी करियर इंपॉर्टेंट है संगीता के लिए, क्योंकि संगीता अभी रजिस्ट्रार बनी है. कोई बात नहीं, अभी नंबर 1 रख सकते हो उसको. 3 महीने बाद हम किसी और चीज को, मे बी मदर इन दी फैमिली, योर हेल्थ, योर डॉटर, वॉट एवर. जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, संगीता, आई एम नॉट सेइंग दैट योर करियर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. And I'm not saying that career is not important for you. Whatever is right for you is right for you. So, Pragati, please keep yourself on mute. When you are done,
Write down done in the chat box so that we can start again. I'm waiting for a few more dones and then I will start. Few more. Oh, Vikrant has left the meeting. Okay, so we are done. Let's go ahead. मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. टॉप 5 पे आने के बाद में नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू रैंक देम. सॉरी, रैंक होगी, रेट करना है हमको. टू रेट देम ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. अब 0 का मतलब है ये आपकी एवरीडे लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज नॉट इन योर, ये पैशन, ये प्रायोरिटी आप हर रोज की लाइफ में ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं आता नहीं है. 10 meaning everything you want to do in this front, you are doing your best. Am I clear on this? Am I clear on this? 0 का मतलब है आप इस पैशन को बिल्कुल भी नहीं जी पा रहे हो, और 10 का मतलब है आप इस पैशन को 100% जी रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. मेरी पैशन लिस्ट में मैंने आपको बताया कि आई एम सिपिंग माई चाय एट माई प्रोफेशनली मैनेज्ड फार्म हाउस, राइट? अब अगर मेरे प्रोफेशनली मैनेज्ड फार्म हाउस में मुझे चाय पीना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? जमीन खरीदनी पड़ेगी शायद. और आज तक अगर इस पेपर पे लिखने से पहले मेरे दिमाग में ये था ही नहीं कहीं, इट इज अ 0 फॉर मी. अगर मैंने लैंड्स देख लिए, पीस ऑफ लैंड्स देख लिए, 8-10 पीसेस हैं जो मेरे ध्यान में हैं, मे बी इट इज अ 1 or 2 फॉर मी. अगर मेरा लैंड का डील हो गया है, इट इज 3 or 4 फॉर मी. अगर मैंने वहां पे एक आर्किटेक्ट को घुमा के और उससे नक्शा बनवा लिया, नक्शे पे हम दोनों लोग सहमत हो गए, इट इज अ 5 फॉर मी. कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, मे बी अ 6 फॉर मी. कंस्ट्रक्शन बन के फार्म हाउस तैयार हो गया है, मे बी अ 7 or 8 फॉर मी. वहां पे हम रहने लग गए हैं, वहां पे टाइम बिताने लग गए, मे बी अ 9 फॉर मी. वहां पे स्टाफ रख के हमने ट्रेन कर लिया, 10 on 10 फॉर मी. Right? Am I clear now? So just rate those top 5 on the scale of 0 to 10 and tell me what is your total score. वो 5 में जो भी आपके नंबर आए हैं उनको आपको एड अप करना है, and then tell me the score in the chat box when you are done with the scoring. So मेरा जो टोटल आता है वो 35 आया था जब मैंने भी लास्ट किया था. 50 में से 35 है. आपका कितना स्कोर है आप मुझे बताओ. What is your total? Just give me your total in the chat box. इससे दो फायदे होंगे, मुझे पता चल जाएगा आपका टोटल हो गया, स्कोरिंग हो गई है, और हम आगे बढ़ पाएंगे. 25, गुड. 5, ओके. प्रगति, जस्ट बकअप एंड एकदम कमर कस के तैयार हो जाओ टू वर्क ऑन योर सेल्फ. टू वर्क ऑन योर सेल्फ.
Anyone else is also giving, maybe Sangeeta, Monica, you want to share your scores? If I have one more, I can move ahead. 33. Okay, Sangeeta, I'm waiting for you now. Okay, so let me tell you how to decode these scores. अगर आपका स्कोर 10 से कुछ भी कम है, अगर आपका स्कोर 10 से कम आया है, इसका मतलब है इन योर डेली रूटीन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू मेक योर सेल्फ हैप्पी. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू मेक योर सेल्फ हैप्पी. शायद आपको पता भी नहीं है, आपको हाँ, पता भी नहीं कि आपको क्या करना चाहिए खुश होने के लिए, और आप वो कर भी नहीं पा रहे हैं. अपने पैशन के तरफ, अपनी जो बेस्ट लाइफ है उसकी तरफ आप एक भी स्टेप नहीं ले रहे हैं पूरे दिन भर में, अगर आपका स्कोर एनीथिंग बिलो 10 है तो. राइट नाउ इफ योर स्कोर इज बिटवीन 10 to 20, जहां जो मैं देख रही हूं यहाँ पे किसी का भी 10 to 20 नहीं है, बट स्टिल आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन कि इसका मतलब क्या है. दिस इज ऑल्सो नॉट अ ग्रेट स्कोर, बट एटलीस्ट ये है कि अब आपको ना यहाँ द पर्सन जिसके 10 से नीचे है, मुझे लगता है क्लैरिटी की कमी ज्यादा है. जिसके 10 से 20 के बीच में है, उनके पास करेज की कमी ज्यादा है. वो करेज नहीं कर पा रहे, वो मेहनत नहीं कर पा रहे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं टू से नो टू समबडी, टू से नो टू समथिंग एंड चूज देयर ओन हैप्पीनेस. उनको करेज, क्लैरिटी तो है कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन वो करेज नहीं कर पा रहे. आपको चार्ज लेना शुरू करना है अगर आपका स्कोर 10 to 20 के बीच में है. यू शुड डू मोर थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी. वो हो सकता है सुबह जल्दी नहाना हो हो सकता है वॉक पे जाना वो हो सकता है अपने मन का खाना खाना वो हो सकता है सिर्फ डांस करना, गुनगुनाना, वो हो सकता है सिर्फ ऑफिस जाके लोगों के साथ में इंटरैक्ट करना. आई डोंट नो व्हाट इट इज फॉर यू, बट वॉट एवर इट इज फॉर यू, वो आपको ज्यादा करना चाहिए. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर जॉय, योर हैप्पीनेस. Now, if your score is between 20 and 30, it means that you are clear on what matters to you. और आप थोड़ा बहुत कुछ कुछ कर भी रहे हैं उसके लिए, लेकिन 100% आपका जो कैपेसिटी है वो नहीं कर रहे. इसका मतलब ये है कि आपको कंसिस्टेंसी की कमी है. जो हमारे 3 पिलर्स हैं, क्लैरिटी, करेज एंड कंसिस्टेंसी, इसका मतलब है कंसिस्टेंसी की कहीं कमी है टू मेक योर सेल्फ हैप्पी. You are doing something, but you are not doing it enough. You are not doing it at a regular frequency, maybe. Now, if your score is between 30 and 40, you are definitely on track. जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मोनिका और संगीता का 30 to 40 के बीच में on track हो. You know what makes you happy. You just need to do it more so that थोड़ा और मजा आए. Above 30 is a happy place to be. मतलब हम खुश तो हैं लाइफ में, हमें वो कसक नहीं रह गई है अब कि अरे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा. हो तो सब कुछ रहा है, लेकिन थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा तो और मजा आ जाएगा. राइट सो यू आर एट अ हैप्पी प्लेस. और अगर आपका स्कोर 40 के कुछ ऊपर है, लाइक मोनिका तुम्हारा 38 है, 38 का मतलब है देयर हैज टू बी समथिंग और दी अदर जो 10 on 10 होगा शायद. मेरा है मैम 38। अच्छा, संगीता का 38 है. ओके, सॉरी 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 संगीता. मोनिका का 33 है, मेरा 38। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट. तो अगर आपका स्कोर जैसे 38 संगीता आपका स्कोर है, तो संगीता कोई ना कोई चीज ऐसी होगी उस पूरी लिस्ट में जो 10 on 10 होगी. हाँ, ऑलमोस्ट एक है। राइट सो हम्म। नाउ द नेक्स्ट स्टेप कम्स. अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि खुद को जज नहीं करना है, हम्म। ये एवर इवॉल्विंग लिस्ट है, तो जहां भी आप 10 on 10 हो, अब आपको करना ये कि जहां भी आप 10 on 10 हो वो अपनी इस लिस्ट में से काट देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफॉल्ट मोड में आ गया है आपके. आपको उस पर अलग से फोकस करने की जरूरत नहीं है. अब जो बाकी के वहां 5 बचे हुए हैं, उनको फिर से रैंकिंग करना शुरू करो, नए 5 लेके आओ यहाँ पे. जो 10 on 10 है यहाँ है, उसको सेवल काटना है. जो नहीं है 10 on 10,
वो 1 2 3 हो जाएंगे अब जितने भी हैं, और बाकी का जो काउंट बचा हुआ है आपके पास, मे बी 1 का 2 का 3 का, वो नए यहां जोड़ो। इवॉल्व हो रही है लिस्ट, राइट। और अगर आपका स्कोर 40 के ऊपर है तो अगेन 40 के ऊपर भी यही काम करना है कि जो भी 10 on 10 है उनको हटा देना है और फिर नए 6 7 8 जोड़ना है, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। ठीक है। नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ दिस टेस्ट, ओपन योर वर्कशीट नंबर 3। अब आपको करना क्या है, आपके जो टॉप 5 है, संगीता यू विल हैव टू रीडू इट, रादर एवरीवन, ईच वन ऑफ यू विल हैव टू रीडू इट। अभी हम बहुत टाइम कंस्ट्रेंट के साथ में कर रहे हैं। आप इसके को जो वर्कशीट, पूरी जो वर्कशीट्स हैं तीनों, इनको दोबारा करना within 24 hours। मतलब हम करीब 9 बजे क्लास खत्म करेंगे, तो अगले कल रात 9 बजे से पहले आपको ये पूरा रीडू करना है टेस्ट। टेक योर ओन टाइम, डोंट बी इन रश। अच्छे से आराम से एकदम शांत मन से बैठ के सुबह सुबह करोगे तो बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, सुबह सुबह नहीं कर पाए, जब भी समय मिले तब इसको करना। 1 घंटे का टाइम लेके करना है इस टेस्ट को। ठीक है। नाउ द लास्ट वर्कशीट, ओपन योर लास्ट वर्कशीट। नाउ आई वॉन्ट यू टू राइट एटलीस्ट 3 to 5 मार्कर्स। मार्कर्स का मतलब ये है कि अगर आपने वो पैशन लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ही पैशन लेती हूँ कि मेरा ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस फ्लरिश हो रहा है, आई एम डूइंग सक्सेसफुली डूइंग माई ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस। अगर मेरा ये मार्कर है, मेरा ये टॉप फर्स्ट पैशन है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो अब मुझे इसके नीचे लिखना है कि ऐसी कौन सी 3 से 5 चीजें जो मुझे रोज करना चाहिए, रोज नहीं करना चाहिए तो रेगुलरली करना चाहिए, टू रीच दैट टारगेट। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, ज्यादा से ज्यादा वेबिनार्स करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बूट कैंप करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जगह पे क्लासेस लेने जाना चाहिए जहां से मेरे पास में वॉक इन क्लाइंट्स आ सकते हैं, मे बी एड करना चाहिए इफ आई एम एट अ हायर स्टेज। तो आपके वो 3 से 5, कम से कम 3 हर चीज में, और ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंटर्स अभी आप लिखो, ऑल द टॉप 5 ऑफ देम, राइट इट डाउन। ये शीट्स में मीन्स लिखा है, मतलब क्या है लास्ट में? हाँ, दिस पैशन मीन्स, ओके। लिविंग दिस पैशन मीन्स। जैसे मैंने लिखा था तो ये जब मैंने पहली बार ये टेस्ट किया था तब सोना 10th में पढ़ती थी, और क्योंकि सोना 10th में पढ़ती थी तो मेरा टॉप पैशन आया, एम हेल्पिंग माई डॉटर इन हर स्टडीज। अब इसका मतलब मेरे लिए क्या है हेल्प करने का? संगीता के लिए हेल्प करने का मतलब हो सकता है कि रात में साथ बैठ के पढ़ाना। मेरे लिए हेल्प करने का मतलब हो सकता है सिर्फ उसको ट्यूशन छोड़ना और ट्यूशन से वापस लेना, मे बी उसके मन का खाना बनाना, मे बी कुछ और। तो आपके लिए क्या मतलब है इस बात का? आई एम डूइंग दिस बिजनेस सक्सेसफुली, इसका मतलब मेरे लिए क्या मतलब है इस बात का? कम से कम महीने में 5 सेशंस में बाहर के ले रही हूँ, कम से कम 4 वेबिनार कर रही हूँ, कम से कम इतना पैसा मैं खर्च कर रही हूँ ऑन दी एड्स, कम से कम ये, वॉट एवर। सो वॉट इट मीन्स टू यू एवरी डे। मतलब ये एक तरीके से एक्शन स्टेप्स हैं। ठीक है। मैं अपना ही एग्जाम्पल एक और देती हूँ, जैसे मैंने उसमें लिखा था अपने टेस्ट में कि आई एम स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद माई हस्बैंड, मतलब दीपक। अब इसका मेरे लिए मतलब क्या है इस बात का? किसी के लिए हो सकता है बाहर घूमने जाना इज द क्वालिटी टाइम, किसी के लिए तो हो सकता है रोज लंच या डिनर करना इज क्वालिटी टाइम। मेरे लिए क्वालिटी टाइम का मतलब था सुबह की चाय साथ पीना। मेरे लिए क्वालिटी टाइम का मतलब है कि फार्म हाउस पे जाके कभी कभी वीकेंड्स पे वहां रुक जाना। मेरे लिए क्वालिटी टाइम का मतलब है कि हम दोनों साथ में बैठें और थोड़ी देर गप्पे करें, और जो भी जिस भी चीज के लिए हम ग्रैटिट्यूड करना चाहते हैं उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड हम साथ में करें। बस ये मतलब है मेरे लिए क्वालिटी टाइम का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम्म। सो कैन बी डिफरेंट फॉर यू, डिफरेंट फॉर मी, राइट? सो जब आप लिख चुके हैं सब में 3 से 5 चीजें कम से कम, तो मतलब आपके पास कम से कम 15 और मैक्सिमम 20 थिंग्स नाउ यू हैव इन योर हैंड, 25 रादर। 15 से 25 के बीच में आपके पास में पॉइंटर्स आ गए होंगे दैट यू नीड टू डू एवरी डे टू लिव योर पैशन, टू लिव योर प्रायोरिटीज टू द फुलेस्ट, राइट? आप लिखिए, और लिखने के बाद में जब आप लिख चुके होंगे तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए दैट डन।
ओके मोनिका, तो थम्स अप मुझे दिख गया है। मोनिका, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन इट विद मी वंस और ट्वाइस, तो आपका जल्दी हो गया है। बाकी लोगों को हम थोड़ा टाइम देते हैं, मे बी दे वांट सम मोर टाइम। प्रगति इज डन, मोनिका इज डन। संगीता, व्हेन यू आर डन, व्हेनेवर यू आर डन, वी विल स्टार्ट। मतलब वी विल रिज्यूम, नॉट स्टार्ट। हाँ जी। डन। रिचा इज डन। संगीता, यू डन? जी। बड़ी जल्दी यार, तुम लोगों ने तीन तीन पांच पांच पॉइंट्स। नहीं, अभी मेरे तो 2 लिखे हैं मैम, अभी 2 बचे हैं। हाँ, तो एक दो दो पॉइंट्स तो लिख लो सब में कम से कम। हाँ हाँ, वही वही मैं कह रही, थोड़ा दीजिए, टाइम तो हाँ, दीजिए। दे रही हूँ। मैम हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। So now all of you have at least 15 or maximum 25 things that you need to do to live the highest purpose of your life, the highest best self, right? So ये एक तरीके से क्या, ये रोड मैप है that will steer you। तो जो भी नेक्स्ट ईयर इवॉल्व होने के लिए, अलाइन होने के लिए, ये एक रोड मैप है दैट अगर आप रोज ये चीजें करते हो तो आप ज्यादा बेहतर अलाइंड हो पाओगे टूवर्ड्स योर बेस्ट सेल्फ, ज्यादा इवॉल्व हो पाओगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। हमारी 100 डे की जर्नी में ऑलरेडी लगभग 1 महीने से ऊपर अब हो गया है। 60 दिन के बाद में अगर आप रोज ये करते हो, will you be in a better place? Just tell me in the chat box if you will be in a better place if you do all these 15-25 things every day or maybe regularly। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो रोज करने की नहीं है, हफ्ते में एक बार करने की। अगर आप वो रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, will you be in a better place from today? Just write down in the chat box if you agree with me. Write agree in the chat box or yes in the chat box if you are with me on that. Okay, so we are done with the test. अब बताओ, अब कैसी फीलिंग आ रही है? शुरू में तो फीलिंग थी बड़े एक्साइटेड और पता नहीं क्या क्या। अब फीलिंग कैसी आ रही है? अब कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा ओवरवेल्म, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा कुछ? अब थोड़े थोड़े कैमरा ऑन करो, मैं भी ऑन करूंगी, मुझे देखना है शक्लें सबकी। सो आपके अब साथ डर तो लगता ही नहीं। बहुत बढ़िया, तभी तो 38 आ रहे। ओके, नाउ टेल मी इन द चैट बॉक्स, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? व्हाट इज द फीलिंग? इज देयर समथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक नाउ, जो तुमसे ये बोल रही है कि अरे नहीं 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 हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये 25 चीजें ये कैसे हो पाएंगी, ये दिन भर में कैसे पूरी कर पाऊंगी मैं? ऐसा लग रहा है क्या किसी को? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स इफ यू आर फीलिंग लाइक दिस नाउ। और मे बी ओवरवेल्ड हो रहा है कि अरे इतना सब कुछ करना है, समय कम बचा है, ऑलरेडी इतने साल निकल गए हैं, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? अगर ऐसा कुछ लग रहा है जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, व्हाट आर यू फीलिंग नाउ? अ लिटिल, ओके। व्हाट इज द फीलिंग नाउ? डू यू हैव मोर क्लैरिटी नाउ और डू यू हैव मोर कंफ्यूजन नाउ? डू यू हैव मोर फियर नाउ? डू यू हैव मोर ओवरवेल्म नाउ? व्हाट इज योर फीलिंग राइट नाउ? मोनिका ने थोड़ा सा लिख दिया है कि अ लिटिल ऐसा लग रहा है। बाकी के लोग भी बताओ मुझे क्या लग रहा है। क्लैरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद दिस कम्युनिटी, यस संगीता। आई एम फीलिंग पॉजिटिव एंड क्लियर, गुड प्रगति।
नीड्स टू बी मोर फोकस्ड, यस, फाइंडिंग द वे, किस तरह से करना है ना? ओके, मजा आ गया। आज हमने एक काम नहीं किया। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली कनेक्टेड विद योर एपीज दिस वीक? Every morning message. Good. Every morning message. How many of you have followed through the suggestion that after every meeting you need to appreciate and acknowledge something? Have you done this? शुरू शुरू में किया, थोड़ा बीच में मिस हुआ। नहीं, ये बिल्कुल मिस नहीं करना है। अप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट हमेशा ऑन रखना है। Every day, after every meeting, just appreciate and acknowledge whatever you felt was good in that conversation. Right? ये जरूर करना है। दोबारा लिखो सारे के सारे अपने अपने एपी को। क्या लिखना था? आई लव यू एपी, क्योंकि वैसे भी आज एपी बदलने वाले हैं, नया एपी आएगा। टेक्स्ट करो फटाफट अपने एपी को, आई लव यू एपी। और हमारे ग्रुप पे लिखो, 100 Day जर्नी वाले ग्रुप पे लिखो, I am ready to live my passion. I And am what is ready it? to live my passion. Pragati, you Ma'am, what asking is, any question? yes, ma'am, what is AP? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, आप आज ही आए हो, आपको इसीलिए नहीं पता है, वो बताऊंगी मैं। Okay. राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, आई एम रेडी टू लिव माई पैशन। चैट बॉक्स नहीं, 100 Day जर्नी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में लिखना है। संगीता यहाँ भी लिख दिया, अच्छी बात है, वहां भी लिखना है लेकिन, ठीक है? आई एम रेडी टू लिव माई पैशन, यस। सो नाउ इट इज 20:23। मैंने सोचा था 8:30 बजे तक का क्लास लगभग हो जाना चाहिए। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर यू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन्स। 2 होमवर्क है आपके लिए इस हफ्ते, रादर 3 होमवर्क है आपके लिए इस हफ्ते। Number 1 homework is that within 24 hours you will do this passion test once again. When you are done with the passion test, you need to connect with your AP. उस एपी के साथ में आपको यही तय करना है, ये जो 25 चीजें आप लिखने वाले हो, 25 थिंग्स, व्हाट आर दी फ्यू थिंग्स यू वांट दैट अकाउंटेबिलिटी फॉर। वो कौन सी चीजें हैं जिनमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिनमें कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही, जिनमें शायद करेज नहीं आ पा रहा, वो बाउंड्री सेटिंग नहीं हो पा रही, वो कौन सी चीजें आप उनको बताओगे अपने एपी को। एंड नंबर 3, अगर वो पैशन फाइंड आउट करने में दिक्कत लग रही है और दिक्कत नहीं भी लग रही है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, जो मैंने सेशन के दौरान भी बताया है, टू सेंड अ मैसेज टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली। सिर्फ उन लोगों को भेजना मैसेजेस जो आपको पता है कि दीज आर योर वेल विशर्स। उनको मैसेज भेजना है, वॉट डू यू अप्रिशिएट अबाउट मी, वॉट डू यू अप्रिशिएट अबाउट मी। एक सेंटेंस ये है। नंबर 2, दूसरा सेंटेंस है, व्हेन हैव यू सीन मी द हैप्पीएस्ट, व्हेन हैव यू सीन मी द हैप्पीएस्ट। और जैसे ये जवाब आएंगे आपको पता चलेगा व्हाट इज योर कॉलिंग। वो ईश्वर की तरफ से जो सिग्नल है जो हम नहीं ले रहे हैं कई बारी, वो आपको पता चलेगा कि आपकी कॉलिंग क्या है। ये 3 ही होमवर्क है। सबसे पहले पैशन टेस्ट दोबारा करना है, एपी के साथ कनेक्ट करना है, और तीसरा वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को लिस्ट भेजना है और फिर उसका एक कोलाज बना के शेयर करना है। और बिकॉज आई एम सीइंग कि आप लोग शायद होमवर्क्स उतने अच्छे से नहीं कर रहे हो, सो फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स पैशन टेस्ट करने के बाद में सब लोग ग्रुप पे लिखेंगे डन, टिक मार्क भेजेंगे या डन लिखेंगे। एपी के साथ कनेक्ट करने के बाद में पिक्चर क्लिक करोगे आप, स्क्रीनशॉट, और वो शेयर करोगे। एंड नंबर 3, जब आपकी वो लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी अप्रिसिएशन वाली, तब आप उसका एक कोलाज बना के या फिर ऐसी मैसेजेस फॉरवर्ड कर देना कि मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। ठीक है? नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। ओके, मैं मेरे साथ बार बार ऐसा होता है, मैं बोलती हूँ फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस और फिर मुझे कुछ याद आ जाता है। द लास्ट थिंग विच आई जस्ट स्किप्ड वाज कि हमें इस हफ्ते एपीज चेंज करने हैं। नाउ मोनिका, यू हैव ऑलरेडी बीन अ एपी विद विक्रांत एंड नेहा, दिस टाइम यू विल बी एपी फॉर संगीता।
विक्रांत एंड नेहा विल बी एपीज। अब परेशानी ये कि विक्रांत एंड नेहा बोथ थोड़े से पीछे रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यू नेवर नो व्हाट वर्क्स। एंड फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स रिचा एंड प्रगति आर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। सो लेट मी टेल यू, प्रगति अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का काम क्या है। एज एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आप और रिचा एक दूसरे से बात करोगे और ये बताओगे कि आपको कहाँ परेशानी होती है, किस चीज में कंसिस्टेंसी रखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ एक रिचुअल तय करोगे जो आप दोनों साथ में करोगे। ठीक है, हो सकता है रिचा आपको रोज फोन करके बताएं, मुझे नहीं पता आपकी किस चीज में आपकी कंसिस्टेंसी की दिक्कत है, रिचा आपको रोज मैसेज करके या फोन पे पूछें कि क्या तुमने ये किया, और जो रिचा ने बोला है आपसे कि मुझे ये करना है जिसमें मुझे दिक्कत होती है, आप उससे पूछोगे क्या तुमने ये किया। या तो फोन करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग आपको करना है अपनी पैशन टेस्ट करने के बाद में, वो आपको वीडियो कॉल ही करना है। जूम जरूरी नहीं है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करने ना, पिक्चर क्लिक करना, स्क्रीनशॉट और शेयर करना अपने ग्रुप में। ठीक है, नाउ फाइनली द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव अ फीडबैक, if you want to share something, maybe your wins from the last week, क्योंकि आज हमने शुरुआत करते समय विंस के बारे में बात नहीं की। इफ यू हैव एनी विंस फ्रॉम द लास्ट वीक, इफ यू हैव एनी bulb on moments in the session, during the session, या फिर पूरे हफ्ते के बीच में, just share everything you want to share. Yes, go ahead. मैं माइक ऑफ कर लेती हूँ, नहीं तो दोबारा बोलने लगूंगी। मैम सम गेस्ट आर एट होम, तो मैं अब लीव कर रही हूँ, है ना। Monica, do you have any shares? Pragati, do you have any shares, any questions? Richa, do you have any shares, any questions? I think I already shared in the group, right? It will be a repeat. When? I sent a voice message on the group. Acha, I haven't seen the voice message. Let me check. Okay. ठीक है रिचा, कोई शेयर्स नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, अरे कोई शेयर तो होगा, पिछले हफ्ते कुछ तो अच्छा हुआ होगा। पिछले हफ्ते हमने इतना बढ़िया लिमिटिंग बिलीव्स का सेशन किया, उसके बाद में क्या बदला। माइक तो ऑन कर सकते हो, कैमरा ऑन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। प्रगति, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? हाउ डू यू लाइक द सेशन? कैसा लगा, मजा आया नहीं आया? I love the session and I'm feeling very great right now. I love you for that. And Okay. I'm feeling that I'll be able to do things I'll able to do things instantly. You will be able to do everything you wish for. Everyone who is still in the meeting, please write down in the chat box, not chat box, WhatsApp group. Pragati, you will achieve everything in life. Okay, ma'am, WhatsApp thank मैसेज you. में लिखो सारे लोग जो भी अभी ग्रुप पे हैं, प्रगति, you will achieve everything you dream of in your life. चलो, when you don't, we don't have any questions, जैसी मोनिका का या रिचा का मैसेज आ जाता है ग्रुप में फॉर प्रगति, प्रगति you will achieve all your dreams. Yes, प्रगति you will achieve everything in life. रिचा, ये मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर देना है, जिससे कि वो बार बार दिखता रहेगा प्रगति को, तो प्रगति को पता रहेगा, राइट? So okay, when you don't have any questions, we don't have anything else to discuss, let's go and have our dinner and then a wonderful sleep tonight. Take rest, a good rest. रात में सोते समय just think about the life you want to live, and सुबह सुबह उठ के ये पैशन टेस्ट करोगे, you will have a lot of clarity. ठीक है, so bye bye, all the best, see you next week Sunday. Thank you, ma'am. Love you, Richa. Good night, ma'am. Good night, love you all, bye.